start? Yes, Uh, please go ahead. good, a very good morning to all our six state PIBs and CBC officers who have joined, to DG Ma'am, Monadeepa Mukherjee, and to our resource persons who've come here. Today is 2nd of May, which is the 50th countdown to the International Day of Yoga, which is on the 21st of June. So we're thrilled to be able to celebrate this occasion with CBC and PIB officers from 6 states in the West Zone. And we're even more thrilled to be associated with Kaivalya Dham on this occasion. Kaivalya Dham is one of the oldest yoga institutes in India. And from Kaivalya Dham today, we have with us three experts in the field of yoga. That is the Joint Director, Mr. Ravi Dixit. Sir, I welcome you. Mr. Ravi Dixit is the Joint Director of Kaivalya Dham, Mumbai, with over 42 years experience in yoga and naturopathy. He has taught across countries like USA, UK, Canada, Indonesia, Singapore, and has authored 4 books on yoga. He has conducted several programs for police force, army, navy, military, and government officials. He is the honorary therapist to the governor of Maharashtra and has been SEO of state government in the past. Welcome, sir. With Mr. Dixit, we have Anvita Dixit and Anvay Dixit who will be assisting him. Anvita, having lived and grown up at Kaivalya Dham Yoga Center, was trained in the classical form of yoga from a very young age with a focus on Indian classical asana, pranayama, meditation, and yoga philosophy. She has been teaching yoga for several years in India and abroad. Welcome, Anvita. Along with Anvita, we have Anvay Dixit. Anvay is a certified yoga teacher from Kaivalya Dham Institute, where he is currently pursuing an MA in yoga. So, on behalf of PIB and CBC, we welcome all three of you. And before we begin today's program, it has been on DG Ma'am Monadeepa Mukherjee's initiative that this program has been put together, and she was insistent that we partner with such a reputed institute. So I would like to invite Ma'am to say a few words. Namaste, good morning everybody. Good morning Dixit ji and all those who have joined. I'm really thankful and grateful that we have been able to begin this 50-day countdown with a 100-year-old yoga institute which is there in Mumbai. Very few people actually know about Kaivalya Dham, so I'm happy that our colleagues in other regions are also being exposed to what Kaivalya Dham is and how we can get the benefit of having such an institute and interacting with you. Working for the government at present is stressful work. We are all stressed. So I hope that you will be able to speak to us and guide us about how we could reduce our stress levels and improve our health, because health is everything. Although we may have as much money as possible, but if we don't have good health, then that money is of no use. So that is why I hope that we could continue this not just till International Yoga Day, but on and off. If we could have certain sessions with you physically and also virtually, it will be of great help. Thank you very much for agreeing to this. I'm really grateful to you. Thank you, ma'am. Thank you for those words. And truly, yoga is a very important topic. And now, without wasting much time, sir, I hand over the session to you. And we're all very excited to understand what you have for us. Thank you, sir. Please go ahead. Thank you, Nikita ji. Thank you, Mukherjee madam. And thank you, Farma madam as well. First of all, I welcome all of you to this 50th day countdown to IDY, that is International Day of Yoga. Kaivalya Dham has also entered its 100 years. And as we know that our Prime Minister is the main instrument having this IDY, 21st June, getting approved in UN. And we have been celebrating for last nearly 8 years. The very first one was in 2015. We are also a partner and team member with the Ministry of Ayush in a new concept of yoga break at workplace. As Madam Mukherjee mentioned, that a lot of stress because government
is really working very hard. Everyone is doing their best. Everybody, but mainly government staff, employees. So therefore, Ministry of Ayush with Kaivalidham as a team member, partner, came up with this idea of yoga break at workplace. That is a shorter version of yoga, what one can do in office. We know that we used to have, we even have now coffee break, tea break. So why not have yoga break, which will refresh you, relax you, rejuvenate you, and recharge you. So when we have these wonderful initiatives from the Ministry of Ayush, PMO, and now from IB Ministry as well. One of the most common mistake we all do, consider yoga as one of the only physical aspect. But yoga is not only physical, but it's mental, emotional, spiritual as well. Kaivalidham believes in traditional and scientific yoga. Muni Patanjali actually wrote the Science of Yoga, Health and Healing 5,000 years before. And he has clearly mentioned one simple sutra for asana saying Sthir Sukham Asanam. So whenever you practice asanas, ensure we are happy, steady, comfortable, and we enjoy it. Same way, the other definition is how one should do it, and that is Prayatna Shathilya Anant Papatigna. So we should also ensure that we are following the process which is smooth, rhythmic, without any force, fight, and jerk. So I will just tell all of you that one principle definitely you should remember in yoga practices that do what you can. All right, I think we all know benefits of yoga. We all know how good yoga is. We will not go into the theory and discussion or the details of it. We will focus on practice part because we all lack practice. We talk, we see, we hear, but we don't implement, we don't practice. So let's practice and get some good benefit. When you do yoga every day, you will receive happy hormones. We call them daily dose. Dose means dopamine, oxytocin, oxytocin, serotonin, endorphins, and various more. So sincerely, if you practice scientific and traditional yoga, benefits are bound to be there. First of all, let me say yoga break at workplace, why we need it. The reason is we are sitting all the time on chair, working hard. We get engrossed in our work and we are not able to remember that we need to move. We all know that water which is flowing in the river, we can drink. But the water which gets stagnated in ponds and places like anything which is not moving, not flowing, has toxins, has germs and other issues. Same way in the body. If the blood circulation is happening properly, body will have less pains, aches and problem. Organs will function happily. They will be doing their job properly, means all the glands will have a proper secretion. Function of the system will be good and less issues with health. So please remember that we should have activity every now and then. So let's begin with simple one principle which I just now mentioned, the blood circulation, blood flow in the body. End of nerves, your fingers and toes are very important to be active. So we will first begin with those simple practices where these two yoga teachers models will show you. All of you now get ready. But before that, as ma'am said, we all are stressed. And the solution for stress is let there be smile. I want to see all of you smiling. Yoga doesn't mean anything very serious or stressed or like, having a tough faces. Face should be relaxed, smiley. Yoga means flexibility. Flexibility of mind, body, emotions, and the breath. So let there be smile. Now, why we should smile? I'll tell you one simple benefit as well. In our body, we have longest nerve called vagus nerve. If the vagus nerve is stimulated, it helps our system called parasympathetic system getting more active, which is responsible for our health and healing. So let's do this for 5 minutes. And to stimulate your vagus nerve, there are 3 simple conditions. Condition number 1 is let there be smile. Let there be smile. I want all of you to smile as well. Can we smile, please? Sherever hasu yodhya. चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और अब धीरे से आंखें बंद कर लीजिए.
आप सभी आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, चेहऱ्यावर हसू येऊ द्या, मुद्दामून येऊ द्या. आपण कॅमेरा समोर काय करतो, नेहमी मुस्कुरातो की नाही, हसू येते की नाही. सो लेट देयर बी स्माइल ऑन योर फेस, क्लोज योर आईज, and now let's start breathing little happily, friendly, consciously, little longer, slower, and deeper. So, three conditions we should remember: smile on your face, close your eyes, and let's breathe a little longer, slower, and happier. When we do this for a few minutes, our longest nerve in the body, called the vagus, gets stimulated, and in turn, our parasympathetic system is more active, which is responsible for all the healing and repair and rejuvenation. So, right now, we all are closing eyes, smile on your face, and breathing little slow, deep, and long. Now, for 5 minutes, please do not open your eyes. Please ensure that we are here and now with the smile on the face, eyes are closed, and now concentrate inside of your nostrils and see what happens. When you inhale, you will feel cool air is touching your nostrils. When you breathe out, you will feel warm air is coming out. पूरा ध्यान अपना नाक के अंदर लाइए. आप जब सांस लेते हैं तो ठंडी सांस नाक में जाती है, गर्म सांस बाहर आती है. उसे अनुभव करिए, महसूस करिए. Also find out we have two nostrils, which is more open, more clear, right or left. हमारे दो नाक के छिद्र हैं, दायां, बायां, डावा और उजवा. सिर्फ ये पता करना है किस नाक के छेद में सांस ज्यादा है या कम है, कौन सा ज्यादा एक्टिव है, कौन सा कम एक्टिव है. आपका पूरा ध्यान नाक के अंदर है, सांस के ऊपर है, आंखें बंद है. सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें आंखें बंद रखनी है और चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है. अगर चेहरा आपका मुस्कुराता हुआ रहेगा, आंखें बंद रहेंगी और सांस आहिस्ता आहिस्ता लंबा गहरा आप लेंगे, तो आपके शरीर में बहुत से बेनिफिट होते हैं. सिंसियरली लेट्स बी अलर्ट, अटेंटिव एंड कीप योर आईज क्लोज्ड. आंखें बंद हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है और सांस हम आहिस्ता आहिस्ता लंबा गहरा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं. सिर्फ साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से सांस को अनुभव करिए, महसूस करिए और सांस को सिर्फ लीजिए और छोड़िए. लेकिन चेहरे का मुस्कुराहट बंद मत करिए. अगर आपको तनाव रहित रहना है, एंडोर्फिन्स बॉडी में और आने देना है, तो मुस्कुराना जरूरी है. हम कैमरे के लिए मुस्कुराते हैं, अभी हम खुद के लिए मुस्कुराइए कुछ देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए. अब हमें यह देखना है कि जब सांस अंदर जाती है तो कहां तक अंदर महसूस होती है, और जब सांस बाहर आती है तो कहां तक बाहर आती है. हमारी सांस की जो यात्रा है, नाक से लेके नाभि के नीचे तक और नाभि के नीचे से लेके नाक तक आती है और जाती है, उसे आप सिर्फ अनुभव करिए. ठंडी सांस नाक में गई, गर्म सांस धीरे से बाहर आई. किस नाक में ज्यादा है, किस में कम है, या दोनों में बराबर है, या दोनों में बंद है, आपकी नाक की जो सांस लेने और छोड़ने की स्थिति है वो कैसी है, सिर्फ आप ध्यान लगाइए 2 मिनट के लिए. और ये मन से, दिल से करना है, अपने आप के लिए करना है. इट्स लाइक मी टाइम. Genuinely, sincerely, please experience your breath inside of your nostrils and let your breath slow down. Feel flow follow and let your breath become slow, shuttle and shallow. सिर्फ 2 मिनट की बात और है. 2 मिनट का समय अपने आप के लिए दीजिए और नाक के अंदर सांस को अनुभव करिए, महसूस करिए. जब हम सांस लेते हैं, ठंडी सांस नाक में जाती है और जब सांस छोड़ते हैं तो गर्म सांस बाहर आती है. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में कुछ पलों के लिए सांस अपने आप रुकती है, शांत होती है, स्थिर होती है. और ये स्थिर होना और उसका रुकना हमें कुछ पलों के लिए बढ़ाना है, उसको समय देना है. सो ठंडी सांस नाक में गई, फिर अपने आप रुकी. धीरे से गर्म सांस बाहर आई, फिर अपने आप रुकी. यही जो सांस की हमारी प्रक्रिया है, उसे हमें अनुभव करना है.
महसूस करना है। 2 मिनट के लिए उसे समय दीजिए, लंबा होने दीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, अपने आप बीच में रुकने दीजिए और आहिस्ता से सांस को बाहर छोड़िए, फिर उसे रुकने दीजिए। ये करते करते हमें ये भी देखना है कि 1 मिनट में हम कितने बार सांस लेते हैं। जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, धारणा करते हैं, तब सांस शांत हो जाती है और सांस को शांत होना चाहिए। आप रिलैक्स हैं, शांत हैं, सांस को सिर्फ साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। समय बिताना है, उसको लंबा करना है, लेकिन प्यार से, सहज रूप से और बड़े आहिस्ता आहिस्ता। सांस को जब हम गिनेंगे, तब 1 राउंड का मतलब ये होगा, ठंडी सांस नाक में गई, अपने आप कुछ पलों के लिए रुकी, गर्म सांस बाहर आई, फिर अपने आप कुछ पलों के लिए रुकी। इसे हम 1 राउंड कह सकते हैं। तो अभी आप कुछ मत करिए, शांत रहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, आंखें बंद रखिए और सांस को शांत होने दीजिए। So feel flow follow. Let your breath become slow, shuttle and shallow. We just spend time, prolong the process. सांस है तो सब कुछ है और हमें सिर्फ सांस के साथ रहना है, महसूस करना है, अनुभव करना है, उसे लंबा होने देना है। आहिस्ता आहिस्ता लीजिए और छोड़िए। अब हम सांस को गिनने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट में हम कितने बार सांस लेते हैं और कितने बार छोड़ते हैं और अपने आप बीच में रुकने भी देना है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, आंखें बंद रखिए और सांस को गिनने की प्रक्रिया शुरू करिए। अब बहुत ही आहिस्ता गिनना है। ठंडी सांस का अंदर जाना, उसका अपने आप कुछ पलों के लिए रुकना, धीरे से गर्म सांस का बाहर आना और फिर उसका अपने आप रुक जाना। ये कहलाता है 1 राउंड। आप कुछ देर के लिए इसे गिनते रहिए। आहिस्ता आहिस्ता लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, बीच में कुछ पलों के लिए सांस को शांत होने दीजिए, स्थिर होने दीजिए और दूसरा कुछ विचार नहीं करना है। अपनी सांस को शांत होने दीजिए, शांत आने दीजिए और शांत बाहर जाने दीजिए। बीच में कुछ पलों के लिए रुकने दीजिए। और अब सांस को गिनना बंद करिए, लेकिन आंखें बंद रखिए। ये था सिंपल सा अभ्यास, इसे कहते हैं प्राण धारणा। अगर ये आप रोज 5 से 10 मिनट करेंगे तो आपको कम से कम 1 घंटे का या 2 घंटे का साउंड स्लीप का जितना फायदा मिलता है मिलेगा और ये आपको रिफ्रेश, रिजुनेट, रिलैक्स करेगा। तो आपको जब भी टाइम मिलता है, सिंपल सा प्राण धारणा मतलब सांस पे ध्यान लगाना, सांस को शांत करना, आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला एक भाग है इस प्रोग्राम का, वो होगा कुछ आसन के लिए। तो इसके लिए आप लोग आंखें खोलिए और मुस्कुराना बंद मत करिए, लेकिन चेहरा मुस्कुराते हुए रखिए। आसन करना उतना ही जरूरी है जितना हमको सांस लेना या खाना खाना या सोना जरूरी है। आपके आसन करने से हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनको प्रेशर, मसाज, डिटॉक्स होता है, क्लिंजिंग होती है और बहुत से फायदे मिलते हैं। सो हम अब कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला आसन है मुस्कुराना, स्माइल ऑन योर फेस। अभी हमने जो किया था प्राण धारणा, उसके बाद 3 प्रैक्टिसेस का एक कॉम्बिनेशन है, पैकेज है, जिन्हें मैं कहता हूं एक प्रकार का आपकी सुंदरता के लिए, ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और ये हम कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। इसीलिए ये 3 प्रैक्टिसेस को हम साथ में अभ्यास करने वाले हैं और ये तीनों प्रैक्टिसेस आपका बॉडी, ब्रेन, ब्यूटी के लिए बहुत फायदेमंद हैं। और मैं इसलिए ये नाम दे रहा हूं कि आपको याद रहेगा कि बॉडी, ब्रेन, ब्यूटी के लिए ये 3 प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी हैं। आप सुबह, दोपहर, शाम कभी भी कर सकते हैं। एंड अब हम ये प्रैक्टिसेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है सिंह मुद्रा या सिंहासन। अब अन्वय, अन्विता ये आसन को दिखाएंगे आपको
और मैं कहूंगा वैसा आप करिए। अपने हाथों को सीधा कर लीजिए, उंगलियों को एकदम टाइट कर लीजिए जैसे अन्वय अन्विदा कर रहे हैं, और अपना अब चेहरा नीचे लाइए, अपनी जो दाढ़ी है, चिन्ह है, उसको नीचे लाइए, मुंह पूरा खोलिए और जीभ को बाहर निकालिए एंड आंखें ऊपर रखिए। आपके हाथ टाइट हैं, उंगलियां कड़क हैं, जीभ बाहर है, मुंह खुला हुआ है, आंखें ऊपर हैं और सांस मुंह से लीजिए। 3 से 5 बार सांस लीजिए, सांस छोड़िए, उंगलियां टाइट हैं, हाथ सीधे हैं, जीभ बाहर है, आपकी चिन्ह दाढ़ी नीचे है, आंखें ऊपर है, और अब धीरे से आंखें बंद करिए, मुंह बंद करिए और चेहरा सामने लाइए। अपनी हाथ को, उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए। कुछ पलों के लिए शांत रहिए, जो हमने किया उसका आनंद लीजिए। Happy hormones are released after every practice. In a way, we can call them prasad. So प्रसाद ग्रहण करिए कुछ पलों के लिए। और ये जो अभ्यास हमने किया सेम मुद्रा, इसका कॉम्बिनेशन होता है योग में हमेशा, अगर आप आगे झुकते हैं तो पीछे भी झुकना चाहिए आपको। वैसे ही सेम मुद्रा का जो कॉम्बिनेशन है, इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस है, उसे कहते हैं जिह्वा बंद, टंग लॉक। इसके लिए आप सभी को अपनी जीभ को तालू पे चिपकाना है ऐसे। ये आप शायद देख सकते हैं तो समझ जाइए। और जीभ को जब तालू पे चिपका लेंगे आप, तो आपको देखना है नाक के ऊपर। सभी लोग कर सकते हैं ये। जीभ को तालू पे चिपकाइए, नाक को देखिए और सांस नाक से लीजिए। ये टंग लॉक है, जिह्वा बंद है। कुछ पलों के लिए प्रैक्टिस करिए और कुछ देर के बाद धीरे से जीभ को छोड़ दीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ये दोनों अभ्यास जो अभी हमने किए, सेम मुद्रा और जिह्वा बंद, ये आपके चेहरे को, आंखों को, थायराइड को, आपके लेरिंग्स एंड फेरिंग्स को, ब्रेन को, आर्टरीज को, एंड ऊपर के जो शरीर का चेहरा है, ब्रेन है, नेक है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। चेहरे की मसल्स के लिए भी काफी है, इसमें स्ट्रेच हुआ, आपने अनुभव किया होगा। और जब भी आप करें इसे तो ऑल्टरनेट करिए, एक बार सेम मुद्रा, एक बार जिह्वा बंद। अभ्यास करने के लिए हम इसे फिर से रिपीट करते हैं एक बार। अभी आप सभी फिर से करेंगे सेम मुद्रा या सिंहासन। हाथ सीधे करिए, एल्बो सीधा करिए, उंगलियों को टाइट कर लीजिए, उंगलियां खोल दीजिए, ऐसे एकदम टाइट रखिए नीचे। चिन नीचे लाइए, दाढ़ी नीचे लाइए, मुंह खोलिए, जीभ बाहर निकालिए, आंखें ऊपर रखिए और सांस मुंह से लीजिए। सांस मुंह से लीजिए, सांस छोड़िए, लीजिए। उंगलियां टाइट हैं, कड़क हैं, हाथ सीधे हैं, जीभ बाहर है, आंखें ऊपर है। और 3 से 5 सांस लीजिए, छोड़िए, या जितना हो सकता है उतना देर करिए। और फिर धीरे से, आहिस्ता से आंखें बंद करिए, मुंह बंद करिए, हाथ को ढीला छोड़ दीजिए और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट रखिए। हमने जो किया उसके बाद जो प्रसाद मिलता है, हैप्पी हार्मोन्स या जो बेनिफिट मिलते हैं, उसको ग्रहण करिए, उसका आनंद लीजिए, उसके साथ रहिए कुछ पलों के लिए। और उसके बाद अगला अभ्यास है जिह्वा बंद। जीभ को तालू पे चिपकाइए। वैक्यूम हो जाता है, हमारी जो जीभ है वो तालू पे चिपकती है और सांस मुंह से नहीं आएगी। इसमें सांस आना चाहिए नाक से, और देखना है नाक को आपको, सांस नाक से लीजिए और कुछ देर मेंटेन करिए। कुछ देर के बाद धीरे से जीभ को छोड़िए, मुंह बंद करिए, आंखें बंद करिए, कुछ पलों के लिए प्रसाद ग्रहण करिए, हैप्पी हार्मोन्स का आनंद लीजिए और अगला पिछला विचार न करते हुए वर्तमान में रहिए। हम 24 घंटे अगला पिछला ही सोचते रहते हैं, हमें वर्तमान में रहना चाहिए। ये दोनों हमने किए हैं ऑल्टरनेट, एक के बाद एक। इसी प्रकार से इसका जो थर्ड अभ्यास है, कॉम्बिनेशन है, वो है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा के लिए आप सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, आंखें बंद रखिए और बहुत ही आहिस्ता से अपना गर्दन, अपना सर लेफ्ट साइड में लेके चलिए। चेहरे को घुमा लीजिए लेफ्ट साइड, आंखें भी लेफ्ट साइड लेके जाइए। स्लोली जेंटली फेस लेफ्ट, eyeballs also go left. Now once you go left, you breathe in and out slowly, gently, regularly, but ensure you free your neck and shoulders. गर्दन कंधों को तनाव रहित करिए, ढीला करिए, अंदर की आंखों से, मन की आंखों से उन्हें
रिलैक्स करिए, मसाज करिए, शिथिल करिए। कुछ देर को लेफ्ट साइड चेहरा रखने के बाद आंखें भी लेफ्ट साइड में है, हमें अब धीरे से चेहरा लाना है सामने। आंखें भी सामने आ जाती हैं, आंखें बंद हैं, और फिर धीरे से चेहरा लेके जाइए राइट साइड, और आंखों को भी राइट साइड लेके जाइए। और वहां जाने के बाद कुछ देर वहां रखिए, लेकिन दिल से, मन से गर्दन को, कंधों को तनाव रहित करिए, ढीला करिए, ढीला छोड़िए, और चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, उसे नहीं भूलना है। और कुछ देर के बाद आहिस्ता से चेहरे को सामने लाइए, आंखें भी सामने लाइए, और मध्य में आने के बाद धीरे से चेहरा ऊपर करिए। जब चेहरा ऊपर करते हैं तो आपको नाक को देखना है। चेहरा ऊपर करिए, आंखें बंद हैं, और आपका ध्यान नाक की तरफ है। सीधे बैठिए, जितना हो उतना करिए, ज्यादा प्रेशर या दबाव मत लाना गर्दन को पीछे करने के लिए। और अब आहिस्ता से धीरे से चेहरा नीचे लाइए, और जब चेहरा पूरा आपका नीचे आ जाएगा, गर्दन तो आहिस्ता से लाना है, दबाना नहीं है, और जोर से उसको नीचे लाना नहीं है। नीचे लाने के बाद हल्का छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, और आंखों को अपनी दोनों आईब्रोज के या भ्रू मध्य दृष्टि की तरफ, भवों के बीच में रखिए, जिससे हमारा आंखों का भी अभ्यास हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद धीरे से चेहरा सामने लाइए। चेहरा सामने लाने के साथ साथ ही आप आंखें खोल सकते हैं। आंखें बंद करके ब्रह्म मुद्रा करने से थोड़ा फायदा रिलैक्सेशन में ज्यादा होता है, आपकी आंखों को भी फायदा मिल जाता है, और आप आंख खोल के भी कर सकते हैं। तो ये 3 अभ्यास जो अभी हमने किए, सेम मुद्रा, जिह्वा बंद, एक के बाद एक करिए 3-3 बार, और अंत में करिए ब्रह्म मुद्रा जो अभी हमने किया। तो ये सुबह, दोपहर, शाम कर सकते हो आप, कुर्सी पे, ऑफिस में, कहीं भी, और जरूर करिए, बहुत फायदा होता है। और जिसको आगे सीखना है और करना है वो कैवल्य धाम के टच में रहे। हमारी वेबसाइट है kedham.com/Mumbai और kedham.com। वी विल बी इन टच एनीवे। ये तीनों अभ्यास तो एक तरह का पैकेज या एक तरह का कैप्सूल हो गया। अब हम करेंगे कुछ और आसन जो हमारे शरीर के लिए, स्पाइन के लिए, हमारे अंगों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले जरूरी क्या है? मुस्कुराना। लेट देयर बी स्माइल, मुस्कुराइए। ओके, नाउ सबसे पहले हमने देखा है ऑफिस में हमारे हाथ हमेशा नीचे रहते हैं, और इसलिए हमारे कंधों में, गर्दन में यहाँ तनाव बढ़ जाता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम उन कंधों को, हाथों को थोड़ा सा मूव करें। तो सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़िए नमस्ते मुद्रा में। अभी हम करने वाले हैं पर्वतासन। थोड़ा सा दबा लीजिए आपस में, दोनों पाम्स को दबा लीजिए, दबा के रखिए, मुस्कुराते रहिए। और अब धीरे से हाथ को अपने सर के ऊपर ले जाना है, दबाते हुए, और फिर सीधा ले जाइए। आपको शायद पूरा दिखे नहीं, लेकिन आप सीधा स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे अन्वय अन्विता करते हैं। स्ट्रेच करिए पूरा। अब सांस लेते रहिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, खींचिए ऊपर, चेहरा सामने रखिए, गर्दन को तनाव मत दीजिए। अब ये सिंपल सा आसन है, हम कई लोग पूरा हाथ सीधे नहीं कर पाते हैं, कंधे हमारे ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन खींचिए, सांस लीजिए, मुस्कुराइए। कुछ देर की बात और है, कुछ पलों के लिए और करिए। और ये सर्कुलेशन आपका गर्दन, कंधों में इंप्रूव करने के लिए, वहां की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए बहुत जरूरी है। और अब हाथ को दबाते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए, दबाते रहिए, नीचे लाइए, और आहिस्ता से नीचे लाके छाती के सामने लाइए, और फिर आहिस्ता से हाथों को छोड़ दीजिए, लेकिन मुस्कुराना मत छोड़िए, रिलैक्स करिए। ये था सिंपल सा पर्वतासन। आपको समय हो तो आप इसे 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हैं। पर्वतासन के बाद हम करेंगे सिंपल सा आसन जो है गोमुखासन, मॉडिफाइड गोमुखासना ऑन चेयर। अन्विता कैन शो फ्रॉम अदर साइड, यू कैन जस्ट टर्न अराउंड। इसमें आप सभी लोग लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाइए और पीछे लाइए, पीछे की तरफ, पीठ की तरफ लाइए लेफ्ट हाथ को, और राइट हैंड को पीछे ले जाइए पीठ के वहां, और कोशिश करिए कि आप दोनों हाथों को पीछे स्पर्श कर पाते हैं या पकड़ पाते हैं, जैसे हमने आपको दिखाया है। अब चेहरा सामने रखिए, मुस्कुराते रहिए, और सांस को लीजिए लंबा गहरा। इसमें क्या हो रहा है, हमारे लंग्स पूरे खुलते हैं, डायफ्राम, छाती खुल जाती है। आप सांस लेते रहिए, आराम से लंबा गहरा सांस लीजिए, सांस छोड़िए, तनाव कम करिए गर्दन में, कंधों में, और मुस्कुराते रहिए। लेट देयर बी स्माइल ऑन योर फेस। ऑलराइट, आहिस्ता से हाथ छोड़िए, प्यार से धीरे धीरे हाथ को छोड़ दीजिए। कुछ पलों के लिए रुकिए,
जो हमने किया उसका प्रसाद लीजिए, आनंद लीजिए। और रुकने के बाद अब इसको रिवर्स करना है। राइट हैंड आपका ऊपर जाएगा पीठ पे, लेफ्ट अब नीचे आएगा और एल्बो एकदम सीधा रखिए, चेहरा सामने रखिए और मुस्कुराते रहिए। सांस को लंबा गहरा लेना है और धीरे धीरे लंबा गहरा छोड़ना है। मन से, दिल से गर्दन को, कंधों को ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए। सांस पूरी लेना है, पूरी छोड़ना है, लेकिन धीरे धीरे। आहिस्ता से सांस लीजिए, आहिस्ता से छोड़िए और मुस्कुराते रहिए। छाती आगे है, कमर आगे है, एल्बो एकदम ऊपर है और कुछ देर के बाद बहुत ही प्यार से धीरे से हाथ छोड़िए और नीचे लाइए। प्रसाद ग्रहण करिए। हर अभ्यास के बाद एक हैप्पी हार्मोन्स मिलते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स मिलते हैं, उन्हें लीजिए। और उसके बाद हम करेंगे अगला अभ्यास जो है मंडूकासन, मॉडिफाइड मंडूकासन। ये भी हमारे स्पाइन के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए, छाती के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए बड़ा फायदेमंद है। इसमें आपको दोनों हाथ ऐसे उठाना है और पीठ पे लाना है। अनविता, शो फ्रॉम बैक साइड। सो ये दोनों हाथों को आप पीछे क्रॉस कर लीजिए, अपने कंधों पे ऐसे पीछे क्रॉस कर लीजिए। अपने अपोजिट शोल्डर ब्लेड्स को लाना है, चेहरा सामने और एल्बोज अप, फेस इन फ्रंट, and don't forget to smile. Breathe in, breathe out, face in front, let there be smile and breathe well. सांस पूरी लो, सांस पूरी छोड़ो। इसमें हमारे लंग्स खुल जाते हैं, डायफ्राम, छाती खुल जाती है। और कुछ देर के बाद क्या करना है, वापस नहीं आना है, मुस्कुराना है और फिर धीरे से हाथ छोड़िए और वापस नीचे ले आइए। थोड़ा सा विश्राम करिए, प्रसाद ग्रहण करिए, जल्दबाजी नहीं करिए, अगला पिछला ध्यान मत करिए। हमने जो किया उसका फल या प्रसाद या हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स को ग्रहण करिए। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे जो हमारे शरीर में हम नॉर्मली आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, लेकिन साइड में झुकते नहीं है। तो साइड बेंडिंग बहुत जरूरी होती है। इसके लिए आप सभी अभी जो आपका लेफ्ट हाथ को आप आराम से रख लीजिए, जहां भी रखना है, पैर पे या कुर्सी के सपोर्ट पे, और राइट हैंड को धीरे से उठा के उल्टा करके साइड में ऐसे खींचिए। आपको राइट हैंड को उठाना है और लेफ्ट साइड झुकना है, साइड में स्ट्रेच करना है, साइड में स्ट्रेच करना है। चेहरा सामने रखिए, चेहरा सामने रखिए, मुस्कुराना मत भूलिए। आज का जो अभ्यास है 50th डे ऑफ काउंटडाउन टू IDY, एक बात जरूर याद रखिए, मुस्कुराना। सांस लेते रहिए, सांस छोड़िए और कुछ देर के बाद बहुत ही धीरे धीरे, अगर आप अलर्ट हैं, अटेंटिव है, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो खून का दौरा है वो कैसे होता है। अब हाथ धीरे धीरे वापस लाइए। आप जब हाथ वापस लाते हैं तो आपको महसूस होगा कि खून का दौरा धीरे धीरे वापस आपकी उंगलियों में गया और आप वो महसूस कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम अभ्यास करेंगे आसन का या प्राणायाम का या जो भी हम करते हैं, अवेयरनेस के साथ, ध्यान के साथ, तो हमारा बेनिफिट डबल हो जाता है। हमने कर लिया है राइट साइड से, अब करेंगे वैसा ही लेफ्ट साइड से। आप धीरे से लेफ्ट हाथ को साइड से उठाइए, पाम को उल्टा कर लीजिए और उसको ऊपर लेके थोड़ा खींचिए। खींचने के बाद धीरे से साइड में झुकिए। साइड में झुक के चेहरा सामने रखना है, सांस लेते रहिए, बॉडी को हल्का रखिए और जितना होता है खींच लीजिए। इसको खींचिए, साइड में झुकिए, सांस लेना छोड़ना मत करिए बंद। और ये करने से हमारे जो लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स हैं, लंग और हार्ट, इन्हें पूरी स्पेस मिलती है, पूरा जगह मिलता है काम करने के लिए। और राइट साइड में जो ऑर्गन है उन्हें दबाव, प्रेशर मिलता है। स्पाइन हमारी साइड में झुकी हुई है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम साइड में कभी बेड होते नहीं है। और अब धीरे से क्या करना है, मुस्कुराना है और फिर आहिस्ता से वापस आइए। वापस आने के टाइम फिर से अनुभव करिए, आपका खून का दौरा आपके हाथ में, उंगलियों में धीरे धीरे आपको महसूस होगा। और ये महसूस करना मतलब अवेयरनेस से करना, आपके शरीर में जो भी हलचल होती है आप उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और ध्यान लगा के कर सकते हैं। तो ये था मॉडिफाइड चक्रासना, साइड बेंडिंग वाला। हमने लगभग ट्विस्ट करना बाकी है अभी। अगला हम जो करेंगे वो ट्विस्टिंग का अभ्यास है। और ट्विस्टिंग के लिए आप जब हम करेंगे इसे, आप खास बात ये ध्यान रखनी है कि आपको सांस थोड़ी सी लंबी गहरी ज्यादा लेनी है और पेट की हलचल को पूरा होने देना है। ठीक है, आप शुरू करते हैं।
कटी वक्रासन या वक्रासन कुर्सी पे करने के लिए थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। आप सभी लोग अपना लेफ्ट हाथ पीछे लाइए कमर पे, लेफ्ट हाथ, ओके। और राइट हैंड से वो अपना कुर्सी का सपोर्ट या आपका जो लेफ्ट पैर पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद धीरे से पूरा बॉडी को पीछे घुमा दीजिए, पूरा पीछे घुमाइए। आपका ये जो हाथ है ये आपको सपोर्ट देता है घुमाने के लिए। लेफ्ट शोल्डर पीछे लाइए, चेहरा और पीछे लाइए, और अब सांस लीजिए, सांस छोड़िए, पेट को हिलने दीजिए। ये बहुत जरूरी है, आप इसको ध्यान से करिए। सांस लेना, सांस छोड़ना, पेट को पूरा अंदर बाहर होने दीजिए। बड़े प्यार से सांस लिया, पेट थोड़ा सा बाहर जाता है, फिर अंदर जाता है। ये जो मूवमेंट है इससे अंदर प्रेशर मसाज, क्लिंजिंग, डिटॉक्स होता है आपके लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, स्पाइन सभी में। तो वो अनुभव करिए, उनको होने दीजिए। सीधे बैठना है, ट्विस्ट करना है और मुस्कुराना नहीं बोलना है। अब धीरे से वापस आइए, धीरे से वापस आइए। वापस आने के बाद थोड़ा सा रुकिए, मध्य में सांस लीजिए, थोड़ा सा रुकिए। रुकने के बाद हमने जो किया लेफ्ट साइड उसी का हमें करना है राइट साइड। आपका राइट हैंड पीछे लाइए और सीधे बैठिए, और ये जो हाथ से आप या तो पैर पकड़ लीजिए राइट, या आपका आर्म रेस्ट पकड़ लीजिए, और पूरी बॉडी को पीछे घुमा दीजिए। राइट शोल्डर पीछे लाइए, जितना होता है पीछे लाइए, और सर पीछे लाइए। और अब सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और पेट की हलचल होने दीजिए। ये अंदर के जो ऑर्गन्स हैं आपके, उन्हें हल्का सा दबाव, प्रेशर मसाज देगा। सांस लो, पेट थोड़ी बाहर, सांस छोड़ा, पेट थोड़ा और पीछे लाइए, चेहरा और पीछे लाइए, घुमा दीजिए बॉडी को। स्पाइन का भी ट्विस्ट हो रहा है इसमें, और पीछे देखिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, लेकिन तनाव से नहीं, मुस्कुरा के करिए। और अब आहिस्ता से धीरे से वापस आइए। वापस आने के बाद कुछ पलों के लिए मध्य में रुकिए, शरीर को रिलैक्स करिए, जो हमने किया उसका आनंद लीजिए। और जब हम आनंद लेते हैं तो उसे कहा जाता है योगिक जॉय। योगिक जॉय में रहिए। अब हमारा 2 अभ्यास और बाकी हैं जो हम कुर्सी पे कर सकते हैं। वैसे तो आसन बहुत हैं, लेकिन हमने सभी कुछ कर लिया है, लेकिन आगे झुकना और पीछे झुकना बाकी है। हम सभी अपने आप को आशीर्वाद देंगे, और कैसे आशीर्वाद देंगे, वो पैर छू के। तो सबसे पहले आप लोग हाथ ऊपर उठाइए, खींचिए हाथ ऊपर, हाथ ऊपर खींचिए, स्ट्रेच करिए और खींचिए, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए और अपने पैर छू लीजिए, अपने खुद को आशीर्वाद दे दीजिए। अपने पैरों को टच करिए, स्पर्श करिए, और सर को नीचे लाइए। लेट देयर बी नो आई मी माई, सरेंडर करिए, अपना पूरा अहंकार छोड़ दीजिए, आशीर्वाद खुद से ले लीजिए। सांस लेते रहिए, बॉडी को हल्का रखिए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। तनाव मत लेना, पेट में जो प्रेशर मसाज हो रहा है उसे होने दीजिए, स्पाइन को रिलैक्स होने दीजिए। आंखें बंद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। आंखें बंद रखिए और बॉडी को छोड़ दीजिए। गुरुत्वाकर्षण से बॉडी को नीचे आने दीजिए, रिलैक्स करिए, और अब मुस्कुराते हुए धीरे से वापस आइए। वापस आइए और कुछ पलों के लिए शांत रहिए, स्थिर रहिए। खून का दौरा ज्यादा हमारे चेहरे पे, सर में हुआ था, उससे स्थिर होने दीजिए। हाथों को नीचे लाइए और अब कुछ पलों के लिए विश्रांति, अगला पिछला विचार न करते हुए वर्तमान में रहिए, और शरीर को, आपके जो खून का दौरा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा था आपके बॉडी में, उसे आराम से नॉर्मल होने दीजिए। आगे झुकने के बाद, जैसे मैंने कहा, योगा में हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पीछे झुकना भी जरूरी है। तो पीछे झुकने के लिए आप दोनों हाथ पीछे लाइए, जहां रखना है वहां रख लीजिए, चाहे कुर्सी पे या जमीन पे या पीठ पे, जैसे भी रखना रख लीजिए। हाथ पीछे लाइए, पीछे पकड़ लीजिए, जो भी सुविधा हो, और छाती को आगे लाना है, सर को पीछे बेंड करना है, अपना पेट आगे लाइए, छाती आगे लाइए, और कंधे और सर पीछे लाइए। पुश योर बॉडी बैकवर्ड, पुश योर स्पाइन चेस्ट फॉरवर्ड। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन को आगे की तरफ पुश करिए, और सर और बाकी शरीर को थोड़ा पीछे की तरफ बेंड करिए, पीछे की तरफ बेंड करिए, और सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, बॉडी को हल्का रखिए, और फिर धीरे से, आहिस्ता से मुस्कुराइए और वापस आइए।
ऑलराइट, मैंने शुरू में कहा था कि हमारे जो पैर उंगलियों की, जो पैर की और हाथ की जो उंगलियां हैं, वो एक प्रकार का नर्व्स का एंड होता है। हम कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वहाँ एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। तो आप जब भी आपको टाइम मिले, ये मुट्ठी बंद करना, ये करना आप करते रहिए। और ऐसे ही आपके पैर की उंगलियों को भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो पैर की उंगलियां, पैर के पंजे स्ट्रेच करना, मुट्ठी बंद करना और स्ट्रेच करना हर 1 घंटे में करिए, जिससे खून का दौरा अपने आप बढ़ जाता है। और जब भी मौका मिलता है आपको कुर्सी से उठ के चलना फिरना जरूरी है, थोड़ा एक्टिविटी जरूरी होता है। ये अभ्यास हमने किए जो शरीर के लिए थे, आसन किए जो मूवमेंट्स किए बॉडी के लिए किए, जिसको हम एक प्रकार का मॉडिफाई प्रैक्टिस बोल सकते हैं। और अब आसन करने के बाद हम कुछ अभ्यास करेंगे जो हमारे लिए ब्रीदिंग के हैं या सांस के हैं। और ये अभ्यास करने के लिए मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। हम जनरली 500 ml सांस लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर लंग में जो कैपेसिटी है वो 2500 लेने की है, 5 गुना और ज्यादा। आप सोचिए, आप जो 500 ml सांस लेते हैं, वो अगर आप बराबर सांस लेंगे तो आप 5 गुना ज्यादा ले सकते हैं। ज्यादा सांस लेना मतलब शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलना। बहुत जरूरी है सांस लेना और ज्यादा सांस लेना, लेकिन सहज रूप से, प्यार से। उससे भी जरूरी ज्यादा है सांस को पूरा बाहर छोड़ना। अगर आपने सांस पूरी बाहर नहीं निकाली तो जो सांस हमने यूज की हुई है बॉडी में वो बाहर नहीं निकली, तो उसका अंदर कुछ फायदा नहीं है। और शरीर को अंदर जगह बनाने के लिए सांस बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो सांस का पूरा लेना और सांस का पूरा बाहर छोड़ना। तो सबसे पहले हम अभ्यास करते हैं सिंपल सा, कि हम सांस बराबर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ओके, आप सभी सीधे बैठ जाइए। सीधे बैठने के साथ साथ आपकी हाथ की उंगलियां ये ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रख लीजिए। चेहरा सामने लाइए और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करना जरूरी क्यों है? क्योंकि 80% आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टरबेंस है या जो तनाव है, वो बाहर की दुनिया से आ जाता है। तो आंखें बंद करके अंतर्मुखी होना, अंदर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। आपकी 5 इंद्रियां हैं। जब तक हम 5 इंद्रियों में थोड़ा कंट्रोल न लाएं, आराम से धारणा ध्यान नहीं हो पाती है। तो कुछ पलों के लिए आंखें बंद करिए। और आजकल स्क्रीन टाइम जो हम लोग यूज करते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, उससे आंखों को तनाव बढ़ता है। तो आंखें जब भी मौका मिले बंद करना और बंद करके शांत बैठना। आप प्राण धारणा कर सकते हो या कुछ और ध्यान कर सकते हो, बट अभी हमें सिर्फ ये सीखना है, समझना है कि हम पूरी सांस बराबर लेते हैं कि नहीं। आप सभी प्यार से सांस को भरिए अंदर। भरने के टाइम आपका छाती, डायफ्राम, साइड्स, ये पूरा साइड का हिस्सा और पेट को भी फूलने दीजिए। हमें अभी सिर्फ सांस पूरी लेनी है और जरूरी है कि पूरी सांस हम बाहर निकालें। अगर आपने 5 सेकंड्स में सांस अंदर ली तो आपको 10 सेकंड लगाना है सांस छोड़ने के लिए। अभी हम सिंपल सा यही अभ्यास करेंगे। आप लंबा गहरा सांस लीजिए और कोशिश करके धीरे धीरे सांस को छोड़िए। मन में गिन सकते हैं आप 5 सेकंड अगर आपने लिया तो आपको 10 सेकंड छोड़ना है। और जब आप प्रॉपर प्राणायाम करेंगे तो आपकी जो ऊपर की बॉडी का हिस्सा है, छाती और धड़ और ये साइड, ये ज्यादा एक्टिव होता है। और सिर्फ सांस छोड़ने के टाइम हम पेट को थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं। तो अभी हम सिर्फ लंबा गहरा सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग लेना है और आहिस्ता से धीरे धीरे सांस छोड़ना है। आप खुद अनुभव करिए, चाहे तो आप छाती पे हाथ लगा लीजिए अपने और पेट पे भी लगा लीजिए और देखिए पूरी सांस आती है और आपका छाती और पेट पूरा फूलता है कि नहीं। हमें सिर्फ सही सांस लेना सीखना है और पूरी सांस बाहर निकालना भी सीखना है, लेकिन तनाव से नहीं, प्यार से। और पूरी सांस बाहर निकालने के लिए पेट थोड़ा सा अंदर लीजिए, छाती को नीचे आने दीजिए, डायफ्राम को भी श्रिंक होने दीजिए और पेट थोड़ा सा अंदर जाने दीजिए। और जब आप सांस लेते हो तो पेट को रिलैक्स करिए, छाती को, डायफ्राम को पूरा फुला लीजिए और साइड का हिस्सा भी आपका फूल जाएगा। तो चारों तरफ आपको आपके धड़ में, ट्रंक में सांस लेनी है और धीरे से सांस पूरी बाहर निकालनी है। ये अभ्यास आप जब भी मौका मिले 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए करिए। और इसके बाद अब आप सांस नॉर्मल ले लीजिए। हम 1-2 प्राणायाम करेंगे। हमारे पास अभी 5-7-8 मिनट और हैं। और ये करने के लिए जो सबसे सिंपल अभ्यासेस हैं, हम कपालभाति नहीं करेंगे आज, बिकॉज कपालभाति सभी के लिए सूटेबल नहीं होती है।
आप लोग की हेल्थ कंडीशन को पता नहीं है, लेकिन जो भी किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन हो, एसिडिटी हो, अल्सर हो, कपालभाति न करे। और कैवल्य धाम में हमारे डॉक्टर्स हैं जो आपको ऑनलाइन ऑन साइट कंसल्टेशन करके गाइड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भी आप मिल सकते हो डॉक्टर लोगों से। कैवल्य धाम की जो वेबसाइट है kedham.com/Mumbai पे, या केवल धाम पे आप आ सकते हो मरीन ड्राइव में या फिर लोनावाला। सो कपालभाति हम नहीं कर रहे हैं, हम आज करने वाले हैं सिर्फ भ्रामरी और ओम प्राणायाम। भ्रामरी के लिए बहुत सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। आपको सांस पूरी जैसे मैंने अभी सिखाया वैसी लेनी है, और छोड़ने के टाइम एक नेजल साउंड बनाते हैं, जैसे बिग बी नॉइज, भंवरे की तरह। जितना देर तक आप कर सकते हो बिना थके और बिना जोर जबरदस्ती के। तो ये अभ्यास करने के लिए, और भ्रामरी के साथ साथ वैसा ही सिमिलर होता है ओम अभ्यास। ओम के लिए हमें करना होगा, आपने पूरी सांस लेनी है और छोड़ने के टाइम मुंह खुला हुआ रहेगा और ओ की आवाज निकालनी है, जैसे घंटा बजता है मंदिर में या चर्च में, उस तरह से आपको आवाज निकालनी है ओ, और फिर धीरे से मुंह बंद करके की आवाज को लंबा करना है। तो ये ओम जो है एक रिदम में, लय में, जैसे घंटे की आवाज धीरे धीरे कम होती है वैसे उसे कम करना है। तो ये दोनों हम साथ में करेंगे, इसलिए मैंने अभी बताया है। आंखें नहीं खोलनी है, और 5-5 बार हम करने वाले हैं भ्रामरी और ओम। और ये दोनों के फायदे बहुत हैं, वो आप पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए, समय नहीं है तो मैं थ्योरी में नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले आंखें बंद करिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, और समझिए कि आपके सामने फोटोग्राफर है, आपका फोटो लेने वाला है। मुस्कुराइए, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट टू योरसेल्फ। अपने आप को अपना सबसे अच्छा चेहरा दिखाना है और मुस्कुराते रहना है, आंखें बंद करनी है। सिंसियरली आंखें बंद करिए, डोंट बी सीरियस बट सिंसियर। सो क्लोज योर आईज, स्माइल ऑन योर फेस, हैंड्स इन अ ज्ञान मुद्रा, और जस्ट रिलैक्स ऑन योर थाइज एंड योर नीज। आंखें बंद हैं, चेहरा शांत है, मुस्कुराता हुआ है, और कोई जल्दबाजी नहीं है। हम सभी लोग एक साथ करने वाले हैं 5 बार भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए तैयार हो जाइए, सांस लीजिए पूरी, और फिर पूरी सांस छोड़ खत्म होने के बाद बहुत आहिस्ता से प्यार से सांस को फिर से लीजिए, पूरी सांस भरिए। फिर से सांस लीजिए। फोर्थ राउंड, फिर से सांस लीजिए। लास्ट एक बार और सांस लीजिए। शांत रहिए, जो हमने किया उसका आनंद लीजिए, प्रसाद लीजिए। शांत रहने के बाद हम सभी 5 बार ओम उच्चारण करेंगे, और शांत रहिए, सब साथ में करेंगे। सांस लीजिए। ओम का उच्चारण करने के टाइम आपका पूरा ध्यान होना चाहिए आपके छाती के बीच में, सेंटर ऑफ द चेस्ट, वेयर वी हैव अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हार्ट चक्र है, वहां अनुभव करिए, महसूस करिए, और वहीं पे ध्यान लगाना है। सेकेंड राउंड करेंगे, सांस लीजिए।
फिर से सांस लीजिए। फिर सांस लीजिए। एक बार और करेंगे, सांस लीजिए। दो मिनट के लिए शांत रहिए। हमने जो ओम किया उसके बाद की जो भी अनुभूति है, अनुभव है, जो भी कुछ आपको लगता है उसको देखिए, अनुभव करिए, महसूस करिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए आप शांत रहिए और कुछ न करते हुए हमें एक बात जो और सीखनी है, वो कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है, जो है, उसे अनुभव करना है। लेट्स डू नथिंग, let's experience what's happening, let's experience what is going on in the body, outside, inside, and do nothing. Just for last 1 more minute, enjoy the after effects, enjoy the happenings, and let there be no next, no past, no hurry, no rush. Just spend few moments and present moments and enjoy the after effects, which is yogic joy or prasad or simply happy hormones. So remember to keep your body happy, breath happy, mind, emotions happy, and face happy as well. धीरे से हाथ को थोड़ा सा रब कर लेते हैं। रब करने के बाद अपने आंखों पे, चेहरे पे लगा लीजिए। आपकी खुद की ऊर्जा है, इसको दे दीजिए। फिर बहुत ही आहिस्ता से आंखें खोल लीजिए। मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूं योग की, जो जरूरी है जानना। हम योग करते हैं 1 घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए, लेकिन बाकी 23 घंटे हम क्या करते हैं, ये जानना जरूरी होता है। सो योग आप करिए 1 घंटे के आसपास, लेकिन 23 घंटे भी यौगिक हो, एक प्लान्ड हो, टाइम मैनेजमेंट हो, सिस्टमेटिक हो, और वो आपके 23 घंटे बहुत जरूरी है, आप उन्हें अच्छी तरह बिताइए। यौगिक डाइट जो हम शॉर्ट में बताना चाहते हैं वो है मिताहार। आप जब भी खाना खाते हैं 25% पेट खाली रखिए, 25% पानी और लिक्विड लीजिए, और 50% शाकाहारी सिंपल खाना खाइए। तो ये है यौगिक डाइट, जिसे हम कहते हैं मिताहार। कोशिश करके सात्विक रखिए, अदरवाइज जो आप खाते हैं खा सकते हैं, लेकिन शाकाहारी हो अच्छा है। और 25% पेट खाली, 25% पानी या जूसेस या लिक्विड, और 50% सिर्फ शाकाहारी खाना। और इसके साथ साथ मैं कुछ और टिप्स देना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। आप खाना खाने के बाद क्या करें, यह भी जानना जरूरी होता है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है शतपावली, आप कोशिश करके 100 कदम या 10 मिनट चलिए। और योग में है वज्रासन, जो सभी को पता है, कॉमन है। अभी हम नहीं कर पाएंगे यहाँ, लेकिन आप नाम सुन लीजिए और जब भी मौका मिले खाना खाने के बाद वज्रासन का अभ्यास करिए। और उसके अलावा एक और अभ्यास है जो भी आयुर्वेद में है, जिसे कहते हैं वाममोक्षी। खाना खाने के बाद अगर समय हो, संभव हो, तो आप लेफ्ट साइड लेटिए, 32 सांस गिनने तक, आंखें बंद करके आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना। लेफ्ट हाथ को पिलो बना के लेफ्ट साइड सो जाना। 32 ब्रेथ, अगर वो नहीं गिननी है तो 5-6 मिनट, 8-10 मिनट आप लेटिए। और उसके बाद फिर राइट साइड लेटिए। जितना देर आप लेफ्ट साइड लेटे थे उतना ही देर आप राइट साइड लेटिए। मतलब अगर आपने 32 सांस गिने तो 16 सांस या 5 मिनट के आसपास आप राइट साइड लेटिए, हाथ का पिलो बना के, पैर थोड़े से मोड़ के, आंखें बंद करके, और सांस को बड़ा आहिस्ता प्यार से लेके। और फिर राइट साइड लेटने के बाद फिर लेफ्ट साइड आइए, और उसका आधा 8 ब्रेथ या 2-3 मिनट आपको फिर से लेफ्ट साइड लेटना है। आप याद रखिए शॉर्ट में लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट सो जाइए थोड़ी देर के लिए, फिर राइट उसके आधा समय, और उसका आधा समय लेफ्ट साइड। और फिर अपनी दिनचर्या जो भी आप करते हैं वो करिए, या फिर आप रात्रि का समय है तो आप सो जाइए, आप सो सकते हैं। तो ये छोटी सी कुछ टिप्स हैं कि हम खाने के बाद क्या करें, खाना क्या खाएं, कैसे खाएं। और इसके साथ साथ योग का अभ्यास रोज करिए, दिन में कम से कम
आधा एक घंटा करिए। और मैं चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं वो चालू रहें। आपके मैडम मुखर्जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऑनलाइन क्लास चालू रखें। हमारे केवलधाम में हम लोग 5-6 क्लास रोज करते हैं। हमें खुशी होगी हम ये उस क्लास की लिंक आपको दे दें और आप लोग करें। साथ ही साथ मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने योग को आज घर-घर पहुँचा दिया है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जिन्होंने योग को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है, एक्टिव रूप से काम किया है, और साथ ही साथ आप सभी लोग जो जुड़े और जो लोग इसमें शामिल हुए, एंड मिनिस्ट्री ऑफ IB as well, and everyone who is helping in this directly. And thank you so much. And I'll end my class here. Thank you so much. Thank you, Ravi Dikshit sir, and thank you, Anvay and Anvita, for this very enriching and refreshing session. It has definitely had these 50-55 minutes have had a very calming effect on me, and I'm sure that's the same with all our participants as well. At this point, I would like to ask our participants if anyone would want to express how this session went or what they felt. We have offices not only across Maharashtra, that is Kolhapur, Jalgaon, Pune, but we also have offices from different states who have joined. Madhya Pradesh, we have Raipur, we have Goa. So we have participation from the entire West zone. We also have our ADG ma'am with us and ADGs across Raipur and Madhya Pradesh and other places. Sir, ma'am, would anyone like to say something? Okay, myself Sunil Tiwari from Raipur. It's a very nice experience because we are doing yoga on floor right now. On the chair, this is the first time we heard that we have to do yoga on chair also, on office time also. So that's a very nice experience, Mr. Joshi, and we will join you again and again. We try to join you and Kavaladham also. Thank you for this session. Thank you. Thank you, sir, and thank you for your enthusiastic participation as well. Ma'am, would you like to say something? Thank you, Nikita. Ma'am, yes. Yeah. There's somebody who wants to speak. Yes. Yes, ma'am. Mr. Sonu Kumar has raised his hand. I'm sorry to. हमारी आवाज जा रही है? जी, आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मैं उन सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं पटना बिहार से जुड़ा हूँ और हिंदी पत्रकारिता जनसंचार का विद्यार्थी हूँ। सर, आपके माध्यम से जो बातें कुछ मैं लेट से जुड़ा, बट यूट्यूब पर मैं इन्हें पूरा देख लूंगा। आपने जो भी बातें बताई बहुत मुझे अच्छा लगा। कुछ चीजें जो बताई आपने, जो मेरे साथ मेरे समस्याएं हैं वो उससे भी दूर हो सकती हैं, जो आपने बताया। PIB के इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैम। इस तरह की PIB को ऑनलाइन कार्यक्रम हमेशा करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम होने से हम लोग जैसे जो दूर में बैठे लोग हैं जो बहुत कुछ जान पाते हैं। मैम, मेरी एक विनती होगी, कोरोना काल के बाद से बहुत से कार्यक्रम PIB के द्वारा बंद हो चुके हैं, वो कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से 1 घंटा सेशन अवश्य होते रहना चाहिए। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। Thank you. Ma'am, would you like to say something? Smita ma'am? जी, धन्यवाद डॉक्टर दीक्षित। जैसे आप देख रहे हैं, मेरे कुछ कुलीग्स जो केंद्रीय संचार ब्यूरो पुणे से जुड़ रहे हैं, उन लोगों ने बकायदा ऑफिस के कॉरिडोर में आसन बिछा के आपके साथ योगा किया है। मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी। अब मेरे जितने कुलीग्स पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न हमारे पूरे पश्चिमी जोन के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न हमारे केंद्रीय संचार ब्यूरो पत्र सूचना कार्यालय से जुड़ रहे हैं, उन सबका भी धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं आपका, अन्वय और अन्विता का देना चाहूँगी, क्योंकि जैसे डीजी मैम कह रही थी, हमारी ज़िंदगी बहुत तनावपूर्ण है और ऑफिस के बीच में हमें इस तरह का एक अवसर मिले कि हम आधा पौना घंटा निकाल कर और कुछ इस तरह के आसन सीख सकें जो हम बीच बीच में अपने कार्य के बीच में कर सकें, वो हमारे लिए बहुत ही लाभवर्धक है। और आगे भी जैसे आपने कहा और जैसे सोनू कह रहे थे कि आभासी रूप से अगर हम आपसे जुड़ सकें और इस प्रकार योगासन कर सकें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम आपके साथ आज 50वां दिन जो हम मना रहे हैं उसमें न केवल हम आसन कर रहे हैं
बट हमारे केंद्रीय संचार ब्यूरो के विभिन्न जो कार्यालय हैं उन्होंने आज सवेरे 5 बजे से लेकर अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे योग के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। मेरे अन्य सहयोगी जयपुर आदि में भी आज इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम सब जुड़ रहे हैं और आप उसमें एक बहुत सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और इसी प्रकार हमें लाभ मिलेगा। आपका, अन्वय और अन्विता का हमारे दफ्तर आने का, हमें इस प्रकार मार्गदर्शन करने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसे मैंने कहा कि केवल नाम की तरफ से मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे जो 6 क्लासेस होते हैं रोज, उसमें जुड़िए, शामिल होइए। पहला क्लास 6:30 बजे है, फिर 8 बजे है, दोपहर को 4:30 है, 6 o'clock है, 7:30 भी है। और वी कैन ऑल्सो गिव टाइम एज पर योर रिक्वायरमेंट. Generally, we are doing with many other departments of private and government of India. People prefer shorter version of yoga, which is yoga break at workplace for 20 minutes or so in before lunch time. अगर आप चाहें तो हम लोग आपके लिए अलग से लिंक क्रिएट कर सकते हैं और आपको खाना खाने के पहले क्या योग करना चाहिए वो सिखा सकते हैं। तो आप बताइए, we will be happy to do that. जी जरूर, हम आपसे वापस जुड़ेंगे। Thank you Nikita for organizing this so enthusiastically and for coordinating it, and you'll have to take it up till 21st of June. Keep coming up with new things. Sure. And you can take guidance from all the ADGs and other people in the zone who have joined in. So we will keep doing some activity or the other till we reach the International Day of the Youth and thereafter too. Thank you everyone for taking out time and joining us. Thank you so much. Definitely. Thank you everyone.